A very good morning to all the students. Once again, we are coming to introduce a new type of the board questions related to the chapter number 2 of your class 12th accountancy. And the chapter number 2 is accounting for partnership firm. As you know very well, if we are talking about the nature of and the type of the question which already asked in the board examination related to the chapter number 2. So such chapter include the following types of the question, that is in preparation of profit and loss appropriation account, preparation of partners capital account, number third is adjustment in closed account, which is called past adjustment. It means in this situation we rectify the errors which done in the last few years by the accountant, as well as the questions related to the interest on capital and interest on drawing, and the questions related to the guarantee of profit to partner. It means in this situation we provide a minimum profit to the partner by the remaining partner, as well as in this chapter we discuss the questions and the terms and conditions related to the fixed and fluctuating partners capital. So it is a subtopic of the partners capital account. So you can see that if we are talking about the second chapter of your class 12th accountancy, so board examination में basically इस तरह के nature of the questions पूछे जाते हैं. And if we are talking about the difficulty level of such questions, so basically अगर हम board examination के पेपर को उठाकर देखें, so we can find that कि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो इजी टू एवरेज जो होते हैं डिफिकल्टी लेवल, उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. टफ नहीं पूछे जाते. टफ का बेसिक मतलब ये है कि जो ये टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, पूरे अकाउंटेंसी क्लास 12th अकाउंटेंसी का सबसे लेंथी चैप्टर है. इट मीन्स इसमें इतने सारे टॉपिक्स हैं क्योंकि इट इज एन फर्स्ट चैप्टर ऑफ द अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म. सो इसमें इतने सारे टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, जैसे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाना है, फर्म का पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाना है, फिक्स कैपिटल कैसे बनाना है, फ्लक्चुएटिंग कैसे निकालना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे फाइंड आउट करना है. इसमें डिफरेंट कंडीशंस हैं. उसके बाद वी आर टॉकिंग अबाउट दी पास्ट एडजस्टमेंट, कि आपने कोई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया और उसमें कोई एलिमेंट आप चार्ज करना भूल गए या प्रोवाइड करना भूल गए, तो उसको आप क्या करते हो, या एक्सेस चार्ज कर दिया कम. यानी इसमें दो एरर फाइंड आउट किए थे पास्ट एडजस्टमेंट, एक एरर ऑफ ओमिशन और एक एरर ऑफ कमीशन, जो आपने 11th में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी. और इसमें साथ ही साथ मिनिमम गारंटी का भी कॉन्सेप्ट है कि यू नो वेरी वेल वी प्रोवाइड द मिनिमम प्रॉफिट टू द पार्टनर्स. सो इस कुछ तरह की जो चीज़ें हैं दे विल हेल्प टू क्रिएट अ बेटर नॉलेज रिलेटेड टू द सेकेंड चैप्टर. तो आप अगर इस तरह से स्ट्रेटेजी वाइज करके, टॉपिक वाइज करके अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बोर्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, सैम्पल पेपर को सॉल्व करिए, तो आई होप कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा. एंड रिवीजन टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम लोग बात करें, सो रिवीजन टेस्ट इसीलिए कंडक्ट कराया जा रहा है ताकि आप बेसिकली देख सकें कि चैप्टर वाइज आपकी परफॉर्मेंस कैसी है. ठीक है. सो लेट्स वी डिस्कस the first question related to the chapter number 2, and the question is related to the calculation of the opening capital, and the information is very clear, and this question is also asked in the CBSE 2020 sample paper. so ये question already पूछा जा चुका है CBSE के 2020 के sample paper में. okay. And question is, A, B are partner in the ratio of 3:2. The firm maintained fluctuating capital account and the balance of the same is 31st March 2020. For A is 1,40,000 and for B 1,40,000. So there are two partners A and B.
and their capital as on 31st March 2020, it is closing capital is 1,60,000 and 1,40,000. Apart from this, the drawing is 30,000 each. Drawing during the year is 30,000 each. यानी A भी ड्राइंग करता है 30,000 रुपए, B भी ड्राइंग करता है कितना 30,000 रुपए. The next, as per the deed, interest on capital 10% on the opening capital had been provided to them. Calculate opening capital of the partner that their profit were 90,000. So profit will be a 90,000. And the ratios given in this question is 3:2. So firstly we find out with the help of these information that is an opening capital. क्या हम लोग find out करेंगे? The opening capital. So what is the formula of opening capital? As you know very well, the formula of opening capital is, it is very clear, ये मैंने आपको बताया भी हुआ है. Basically, the formula of opening capital is opening capital equals to closing capital plus drawing minus profit. Okay? यानी आप जब क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग ऐड करो और जो प्रॉफिट मिल रहा है उसे आप डिडक्ट कर दो, सो वी फाइंड आउट दी ओपनिंग कैपिटल एंड दिस इज एन ओपनिंग कैपिटल ऑफ ए एंड बी. 90,000 को फर्स्टली आप क्या करो 3:2 में डिवाइड करोगे, सो द प्रॉफिट इज 37,800 एंड 25,200. Okay, and the value is 1,52,200. Opening capital including IOC. इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, ऑलरेडी इंक्लूड है. 1,52,200, 1,44,800. ये ए और बी की ऐसी ओपनिंग कैपिटल आई है जिसमें ऑलरेडी ओपनिंग कैपिटल इंक्लूड है और उसमें लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. सो इसका मतलब है ये जो ओपनिंग कैपिटल गिवन है इसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड है. बहुत ही ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को. आपने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन 1,60,000, 40,000 जो कैपिटल थी, जो एट द एंड ऑफ द ईयर की कैपिटल थी, उसमें आपने क्या किया, ड्राइंग और प्रॉफिट को, ड्राइंग को प्लस किया और प्रॉफिट्स को माइनस किया. सो वी फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी इंक्लूड है. अब क्या करोगे, आपको फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल्स टू द ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100. बट आपको जो ओपनिंग कैपिटल गिवन है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी गिवन है. सो आप क्या करोगे इस सिचुएशन में, सिंपल सा आपको पता है कि अगर आप लेट मान लो ओपनिंग कैपिटल 100, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दैट इज एन 10%. सो टोटल ऑफ ओपनिंग कैपिटल प्लस IOC इज 110. यस सर, क्लियर हो गया. यानी ये जो 1,52,200 है एंड 1,44,800 है इज एन इक्विवेलेंट टू 110. सो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, IOC कैसे फाइंड आउट करोगे, अब तो क्लियर हो गया होगा आधा चीज. तो इन दिस सिचुएशन A और B का IOC कैसे फाइंड आउट करोगे, दैट इज एन 1,52,200 डिवाइडेड बाई 110 मल्टीप्लाइड बाई IOC, क्योंकि आपको IOC फाइंड आउट करना है. And in case of B, the interest capital plus IOC is 1,44,800 is divided by 110 multiplied by 10. So the IOC for A and IOC for the B is 13,836 for A and
for B is 13,164. It is very clear for A. And you know very well, ये जो ओपनिंग कैपिटल आपने फाइंड आउट की है इसमें ऑलरेडी आईओसी इंक्लूड है, तो आप क्या करोगे, इसमें से आईओसी माइनस कर दोगे, क्योंकि जैसे ही आप आईओसी माइनस किया आपने फाइंड आउट कर लिया द ओपनिंग कैपिटल। यही क्वेश्चन में टास्क था कि आप ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करो, एंड द ओपनिंग कैपिटल ऑफ ए 138,364 and 131,636. Okay, so this is a solution of the question given in the CBSE 2020 sample paper. Let's we move to the another type of the question which are related to the same chapter. Question is past adjustments. ये क्वेश्चन आया है आपका CBSE सैंपल पेपर 2020 जिसे CBSE ने इशू किया है 9 अक्टूबर को। इस क्वेश्चन में क्लियरली लिखा था रोहित, रमन एंड रैना आर पार्टनर इन अ फॉर्म। Their capital on 1st April 2019 stood as 2 lakh, 1 lakh 20,000, 1 lakh 60,000 respectively. And it is very clear each partner withdraw 15,000 during the financial year 2019 and 20. So there are three partners: Rohit, Raman, and Rana. Okay, and it is very clear the capital on 1st April 2019 and the value of the capital is 2 lakh, 1 lakh 20, 160. The next information is interest on capital. As per the provision, interest on capital of the partner was to be 5% per annum, drawing 4% per annum, profit and loss 541, and the net profit is 72,000. And the mistake is that the net profit of rupees 72,000 for the year ended 31st March 2020 was divided equally among the partner without providing for the term of deed. यानी डीड को फॉलो नहीं किया गया और प्रॉफिट दे दिया गया। तो इसमें हम लोग किस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं? इस सिचुएशन में सबसे पहले हम बनाते हैं रॉन्ग सिचुएशन, यानी हमें करना क्या था, पहले हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। करना क्या क्या था हमको? सर हमें रोहित, रैना और रमन को पहले हम फॉर्मेट आपको बता दें, इस तरह का फॉर्मेट हम लोग फॉलो करते हैं। पर्टिकुलर्स, तीनों पार्टनर्स के नाम एंड देयरआफ्टर टोटल। सबसे पहले हमें क्या देना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट से देना था हमें? 5%। सो 2 लाख का 5% इज 10,000, 120 का 5% 60,000, 6,000 एंड 160 का 8,000। ये तीनों ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए प्लस होता है, बट फर्म के लिए क्या होता है? लॉस। सेकेंड इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तीनों पार्टनर ने 15,000 रुपीज विदड्रॉ किया था। तो अगर हर पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालें तो 15,000 एट द रेट ऑफ 4% फॉर 6 मंथ, बिकॉज द क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं होता है, तो हम 6 मंथ की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एंड द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर द 6 मंथ इज, इट इज वेरी क्लियर दैट इज 300, 300, 300 फॉर ईच पार्टनर। और ये तीनों के लिए क्या है? एक्सपेंस। तो टोटल के लिए क्या होगा? प्रॉफिट्स। नाउ नंबर सी कि जो प्रॉफिट्स हैं उन्हें हमें किस रेशियो में बांटना है? 5:4:1। तो प्रॉफिट कितना बचेगा हमारा? प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट इज 72,000, जिसमें से 24,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डिडक्ट हो जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का 900 ऐड हो जाएगा। सो द रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 48,900, और इस पैसे को हम लोग क्या करेंगे? 5:4:1 में रोहित, रमन एंड रैना में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
and the value is for 24,450 and 19,560 and 4,890. So the total is 48,090. अब आप क्या करो, इन तीनों को ऐड करो कि आर को कितना मिलना था. आर को टोटल मिलना चाहिए था 34,150. रमन को कितना मिलना चाहिए था 25,260. ये कैसे आ रहा है, 6,000 में 300 माइनस फिर इतना प्लस 8,000 में 300 माइनस प्लस 4,890, दैट इज 412,590. इतना इनको मिलना चाहिए था. दिस इज एन करेक्ट सिचुएशन. ओके, ये तो हमने क्या किया है, सही किया. अब हम क्या करेंगे, रॉन्ग कैलकुलेशन को फाइंड आउट करेंगे कि हमसे क्या गलती हुई है. ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे लास्ट में कि हमसे गलती क्या हुई, रॉन्ग क्या हुआ. रॉन्गली ये हुआ कि जो भी प्रॉफिट हमारे पास था दैट इज इन 72,000, उसे हमने क्या किया, इक्वली बांटा. wrongly distribution of wrong distribution of profit, and the profit is 72,000, जिसे हम 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, and the value is 24 and 24. So this is in total of A and this is in total of B. आप क्या करोगे, नेट निकालोगे, नेट इफेक्ट कितना पड़ा. So the net effect कैसे निकालते हैं, A minus B. For A is 10,150, for B 1,260, for C 11,410. और अगर आप इस कंपेयर करोगे तो यहां देखो A is positive, B is negative. So B is greater than. यहां पे A ज्यादा है, B कम है, B कम है, so it is in positive. यहां पर A ज्यादा है, B कम है, so यहां पे भी पॉजिटिव. So you can see that जो पॉजिटिव में होगा उसकी कैपिटल को क्रेडिट करेंगे और जो नेगेटिव में होगा उसकी कैपिटल को हम लोग डेबिट करेंगे. Let's we discuss the one more question which are related to the CBSE sample paper, and most of the students were confused to solve such type of the question, and सरप्राइज भी हुआ इस तरह के क्वेश्चन को देखकर कि इस तरह का क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ सकता है. एंड आई होप कि आपके पास ये क्वेश्चन हो, क्वेश्चन नंबर 18 of the CBSE sample paper for the year 2020, and the question is very clear. Ajay, Vinod and Chandra are partners. Ajay, Vijay and Vinod and Chandra. They are three partners. And their capital on 1st April 2019. 1st April 2019 is 3 lakh, 2 lakh and 1 lakh. In addition to capital, Chandra has advanced a loan of rupees 1 lakh. Chandra ने लोन भी दिया हुआ है. लोन, Chandra has advanced to loan, तो लोन by Chandra. कितना लोन दिया इसने, 1 लाख रुपए का लोन दिया, यानी 1 लाख की कैपिटल और 1 लाख का लोन भी दिया है फर्म को. Since had no agreement to guide them, उनको गाइड करने के लिए कोई नहीं मिलेगा. They face the following issues at the end of the year. उनके इश्यूज आए इस पॉइंट ऑफ व्यू पे. अब इस इश्यूज को आपको रिजॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932. और इस तरह के क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट सरप्राइज हो गए कि सर इतना इजी क्वेश्चन आ गया और इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, कैसे प्रेजेंट करें. एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो थे इस क्वेश्चन का प्रॉपर रिप्लाई करने में कैपेबल नहीं थे, क्योंकि कभी कभी हम सिर्फ सॉल्विंग बेस्ड क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं. एंड दिस क्वेश्चन इज टोटली बेस्ड ऑन द केस स्टडीज. एक तरह की स्टोरी आपको प्रेजेंट कर दी गई है, इश्यूज प्रेजेंट कर दिया गया है और आपको उसका सॉल्यूशन सॉल्व करके नहीं लिखना है, सेंटेंस में लिखना है. सो इन द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू द फर्स्ट इशू इज Ajay wanted interest on capital to be provided at the rate of 8% per annum, but Vinod and Chandra did not agree. पहला इशू क्लियर हुआ. अजय चाहता है कि उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले 8% पर annum, बट विनोद एंड चंद्रा एग्री नहीं है. तो जो इशू नंबर 1 है, आपको पता है जब हम इशू नंबर 1 की बात कर रहे हैं तो अजय कह रहा है कि मुझे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ पर annum से, बट
विनोद और चंद्रा एग्री नहीं है, तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 अगर कोई भी चीज पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखी है, ठीक है, तो सिचुएशन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करते। एज वेल एज हम कोई भी प्रोविजन या रूल्स या टर्म्स तभी बना सकते हैं जब उसको लेकर तीनों पार्टनर सहमत हो, एग्री। सो इन दिस सिचुएशन you know very well, in the absence of the partnership deed we will not provide the interest on capital. So in this situation no interest on capital will be provided. Number second is Chandra wanted interest on loan to be paid him at 10% per annum. चंद्रा चाहता है कि जो उसने लोन दिया हुआ है फर्म को 1 लाख रुपए का, उस पर उसे 6% का क्या मिले, इंटरेस्ट में, 10% का इंटरेस्ट मिले। बट अजय एंड विनोद वांटेड टू पे एट 5%। अब देखो ये बहुत ही क्लियर हो गया, सी ने लोन दिया फर्म को और एक्सपेक्ट करता है कि 10% का रिटर्न मिले। अपार्ट फ्रॉम दिस ए और बी कहते हैं कि नहीं, तुम्हें 5% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपको पता है इन द अब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड वी विल प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम टू चंद्र, यानी चंद्रा को हम 6% पर एनम के हिसाब से उसके लोन पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। इशू नंबर थ्री इज Ajay and Vinod demanded to share profit in the ratio of their capital withdrawn. अजय और विनोद लग रहा है दोनों ही मिलके काम कर रहे हैं, दोनों चाहते हैं कि उन्हें कैपिटल कंट्रीब्यूशन में मिले, लेकिन चंद्रा कहता है कि चंद्रा को इस प्रपोजल लिखा है, चंद्रा इज नॉट इन एग्रीमेंट विद दिस प्रपोजल। अजय विनोद कह रहे हैं कि जितना हमने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, अगर आप देखो तो ए ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया 3 लाख, बी ने किया है 2 लाख, सी ने किया 1 लाख। अजय और विनोद चाहते हैं रेशियो क्या हो, 3:2:1 हो, बट चंद्रा इस प्रपोजल के साथ नहीं है। एंड यू नो वेरी वेल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among A, B and C will be 1:1 because there is no information regarding the profit sharing ratio. Point number 4, और इस पे हर एक इश्यूज के रिजोल्यूशन पे आपको 1 मार्क्स मिलता। 4th, विनोद being working partner demands a lump sum payment of rupees 40,000 as remuneration for which other partner are not in agreement. कह रहा है विनोद एक वर्किंग पार्टनर है, ए और सी वर्किंग पार्टनर नहीं है, बट विनोद चाहता है कि उसे 40,000 का रेम्युनरेशन मिले, जो सही भी है, लेकिन यू नो वेरी वेल इन द अब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड if there is no information, if there is no provision regarding the remuneration to the working partner, in this situation no remuneration will be provided to any partner. So the solution is no salary oblique remuneration provided to any पार्टनर। किसी भी पार्टनर को हम सैलरी या रेम्युनरेशन नहीं दे सकते, चाहे वो वर्किंग हो चाहे वर्किंग ना हो। ओके, सो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का था एंड दिस क्वेश्चन इज टोटली बेस्ड ऑन द रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। एंड यू नो वेरी वेल अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 if there is no agreement related to the partnership deed, in this situation the following rules will be applicable. Profit sharing ratio will be 1:, that is an 1:1 between the two partner, 1:1 between among the 3 partners. Number 2, no interest on capital and no interest on drawing. No interest on capital will be provided and no interest on drawing will be charged. यानी ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जाएगा। नंबर 3, नो एनी काइंड ऑफ द सैलरी एंड रेम्युनरेशन प्रोवाइडेड टू द एनी पार्टनर। किस तरह का कोई सैलरी या रेम्युनरेशन किसी पार्टनर को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। नंबर 4 एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज कि इंटरेस्ट ऑन लोन पे
6% का क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा मैक्सिमम। एंड नंबर 5, कोई भी पार्टनर नया आता है या चाहता है, वो सारे पार्टनर्स के कंसेंट पे डिपेंड करेगा। अगर स्पेशली जब कोई पार्टनर एडमिट करता है तो सिचुएशन में बाकी पार्टनर्स का भी कह सकते हो एक्सेप्टेंस, बाकी पार्टनर की भी रजामंदी होनी जरूरी है। तो ये कुछ बोर्ड क्वेश्चंस थे आपके चैप्टर नंबर 1 के। सो अपार्ट फ्रॉम दिस सीबीएसई में इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम लोग देख लेते हैं। द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट डील विथ थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इसमें पहला क्वेश्चन जो था, विच आर रिलेटेड टू द अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, एंड द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर, कौन सा आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेट नहीं करता। एंड द क्वेश्चन इज, ऑप्शन इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स कैपिटल। सो यू नो वेरी वेल, पार्टनर्स लोन हम लोग कहाँ शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। सो द राइट आंसर इज ए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये है सैंपल पेपर 2020 सीबीएसई का, ठीक है। नंबर सेकेंड जो क्वेश्चन है, उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो बहुत ही क्लियर है कि सपोज कोई पार्टनर है जिसे हम एक मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी प्रोवाइड करते हैं, मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी प्रोवाइड करते हैं, एंड द प्रॉफिट इज वेरी क्लियर, that is an EFG is the ratio of 3:3:2। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 12। EFG उनका रेशियो है 3:3:2, और अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट जी को हमें मिनिमम प्रॉफिट देनी है, ये पार्टनर्स हैं, जी को मिनिमम प्रॉफिट देनी है कितनी, 80,000, ठीक। नेक्स्ट लिखा है, एनी डिफिशिएंसी ऑन दिस अकाउंट विल बी बॉर्न बाय पर्सनली ई, जिसे बॉर्न करेगा ई बॉर्न करेगा, ठीक। प्रॉफिट हुआ आपका 3,12,000। सो प्रॉफिट हुआ आपका 3,12,000। जब इस प्रॉफिट को हम EFG में बांटेंगे, EFG, तो E की प्रॉफिट आएगी 38, F की 38, G की 28। सो E को मिलेगा, हमें यहां किससे मतलब है, G से, G से को कितना मिलेगा, 28। तो 3,12,000 का 28 G को मिलेगा, दैट इज एन 78,000। बट G को मिनिमम गारंटी कितनी दी गई है, 80,000 रुपीज की। सो 2,000 विल बी बॉर्न बाई E। क्लियर हुआ क्वेश्चन। EFG 3 पार्टनर है 3:3:2 के लिए, और जी को मिनिमम प्रॉफिट मिलेगी 80,000 रुपीज, जिसे बॉन्ड करेगा ई। सो यू कैन सी दैट EFG 3 पार्टनर है 3:3:2 के लिए, जी को मिनिमम मिला 80,000, और यू कैन सी दैट जी को मिलना चाहिए था 3,12,000 का 28, दैट इज 78,000, जिसमें बॉन्ड किया ई ने 2,000। सो क्यों बॉन्ड किया, क्योंकि उसे मिलना चाहिए था 80,000 बट मिला 78, तो 2,000 कौन बॉन्ड करेगा, ई। तो क्वेश्चन यही था कि फाइंड आउट द अमाउंट बॉर्न बाय द ई टू पे द मिनिमम गारंटी प्रॉफिट टू द जी। सो द राइट आंसर इज 2,000। ओके, सो इन टुडेज वीडियो वी डिस्कस अ लॉट्स ऑफ द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू द accounting for partnership firm. I hope today we cleared all the topics and all the question very easily. Thank you, take care, and bye bye. ओके, सो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन विच आर रिलेटेड टू दिस चैप्टर इज, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 12 अकाउंटेंसी, दैट इज एन अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म,
इज दैट कि इस चैप्टर में बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो जनरल एंट्रीज के भी आते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए. द क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू द जनरल एंट्रीज बेस्ड ऑन क्लोज्ड accounts as well as the guarantee of minimum profit to the partner. So ऐसा मत सोचिएगा कि क्लोज्ड अकाउंट और गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट के केस में हमें जनरल एंट्री पास नहीं करनी होती. इस सिचुएशन में भी हमें जनरल एंट्री पास करनी पड़ती है. सो दैट्स वाई जब भी हम क्लोज्ड अकाउंट की बात करते हैं कि जो पार्टनर्स क्रेडिट होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे हम क्रेडिट करते हैं. मींस जिसका कैपिटल जो होता है वो क्रेडिट होता है उसकी कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं, और जिसकी कैपिटल डेबिट होती है उसे हम डेबिट करते हैं. मींस इट इज टोटली बेस्ड ऑन द मॉडर्न रूल ऑफ द अकाउंटिंग. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, सो यू नो वेरी वेल कि जब कोई पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी प्रोवाइड करता है तो इन सिचुएशन जैसे ए ने गारंटी प्रोवाइड की बी को, तो सिचुएशन में ए की कैपिटल डेबिट होगी और बी की कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट होगी. यानी जो गारंटी गिवर है वो डेबिट होगा और जो गारंटी रिसीव कर रहा है वो क्रेडिट होगा. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी एंड आई होप कि आप लोग आने वाले रिवीजन टेस्ट में और अच्छा करेंगे. सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट काइंडली सॉल्व द मैक्सिमम क्वेश्चंस which are given in your book as an additional question. So आज के लिए इतना ही. Thank you, and I hope today we cleared all the topics very easily. Apart from this, if you have any doubt or suggestion regarding this video, please ask me in the online classes as well as in the offline classes. Take care. Bye bye.